Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Fact Spin Talk. In our previous lecture, we have concluded the chapter 1 political science, and I had provided you the PDF notes as well. Today, we are going to start the new chapter, or you can call it a new book as well. Today, we are going to start economics chapter 1. So, in this chapter, the very first chapter of this book is the story of village Palampur. We are going to study that one, but before starting the chapter, I would like to tell you one thing, that we are going to hold the unit 1 test as well in just a week's time. So, we will start this chapter, and meanwhile, before getting started, I would like to tell you a few more things like that. The students are not taking interest in these classes. I hope that they are lacking in the interest. They are not enjoying the classes. They are feeling boring. They feel these classes boring. They are not enjoying, and they are watching it only just 3 to 4 minutes. We are working so hard to teach you, to make you understand the things better, but you people are not taking proper interest in your studies. But you should concentrate on this, and whatever problems you are going through, you should just cooperate with the school and the teachers. Try to understand, try to pay some attention towards your studies. If you will not pay attention towards your studies, you will not be able to understand the things better. So I hope all the class 9 students have completed their both the chapters. Now today we are going to study this chapter. So the book which I have got had some pages missing. I have just got this book, and this starts from page number 7 directly. But before starting this chapter, I would like to tell you one thing, that this chapter deals with the production. What is production and how a production happens? What are the factors, important factors responsible for the production of anything, any product? So here we are going to understand the production and the requirements for the production through a story. This story is of a village whose name is Palampur. So, as you can see that this is class 9 students, economics, the story of village Palampur. This is chapter 1. So, meanwhile, let me tell you one thing. Suppose that, what is production? उत्पादन क्या है, और उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्पादन के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से जो चीज़ें हमें उत्पादन के लिए चाहिए होती हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि उत्पादन के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, उनमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. Requirements for production. किसी भी चीज के उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, इन्हें हम देखते हैं. सपोज दैट आप देख पा रहे हैं कि ये एक पेंसिल है. मान लिया जाए कि ये एक पेंसिल है, और इस पेंसिल के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, पेंसिल की एक फैक्ट्री होगी. फैक्ट्री में क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगे, आप देखते हैं. मान लीजिए कि पहला जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा लैंड का. अब आप सोचेंगे कि पेंसिल बनाने में सर बता रहे हैं लैंड की जरूरत पड़ेगी. लैंड क्यों चाहिए भाई, पेंसिल बनाना इसमें जमीन का क्या काम है? तो सबसे पहले बात ये हम देखेंगे कि पेंसिल कोई घर में नहीं बनाता, पेंसिल फैक्ट्रीज में बनती है, और फैक्ट्री कहीं हवा में नहीं झूलती, बल्कि
फैक्ट्रीज लैंड पे होती है तो जमीन चाहिए होगा। इसके लिए लैंड से मतलब है कि जमीन चाहिए, उसमें बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी चीजें चाहिए होंगी। दूसरी चीज हमें चाहिए होगी उसमें कैपिटल चाहिए होगा, फिजिकल कैपिटल कह सकते हैं आप, फिजिकल कैपिटल यानी कि जो हमें पूंजी चाहिए होगी। फिजिकल कैपिटल में दो तरह की पूंजी होगी, वो हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में। तीसरा होगा ह्यूमन कैपिटल। चौथी चीज जो चाहिए रहेगी हमें इसमें वो होगा जो अदर रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो वो रिसोर्सेज वगैरह चाहिए रहेंगे। तो फिजिकल कैपिटल में हम देख सकते हैं दो चीजें होंगी। फिर फिजिकल कैपिटल में दो होगा, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होगा, अच्छा हाँ, इसमें एक रिसोर्सेज में आप समझ सकते हैं कि लेबर चाहिए होगा, लेबर जो मजदूर उसमें काम करेंगे। एक फिक्स्ड कैपिटल होगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होगा, जो ऐसा कैपिटल जो एक बार लग गया और कई सालों तक उस काम इस्तेमाल करते रहेंगे, जैसे कि जो बिल्डिंग बनेगी, जो घर होगा, जो कारखाना होगा, वो फिक्स्ड कैपिटल का हिस्सा कहलाएगा। और फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ इसमें चाहिए रहेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हो गया जो लेबर्स इसमें काम करेंगे उनको तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा। पेमेंट जो हम करेंगे वो पेमेंट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीदेंगे, जैसे कि ये पेंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें कच्चा माल क्या क्या है, देखिए कलर है, लकड़ियां हैं, लकड़ी के वो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, प्लस ये ग्रेफाइट का एक रॉड आएगा। तो ये सारी चीजें चाहिए रहेंगी, सारा रॉ मटेरियल हो गया। तो इसमें फिजिकल कैपिटल में दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया जैसे कि बिल्डिंग, मशीनें, कारखाना और जो सारा चीजें, और एक हो गया वर्किंग कैपिटल जिसमें जो पूंजी लगा, जो पेमेंट्स लेबर को कर रहे हैं हम, और जो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदने में जो पूंजी लग रही है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे, क्रियाशील पूंजी कहेंगे। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि जो इस धंधे को, इस बिजनेस को करने के लिए जो चीजें चाहिए होंगी, जो उसमें पूरा दिमाग चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये तो सभी लोग नहीं कर सकते। एक तरबूजा काटने और बेचने वाला आदमी को बोलेंगे कि पेंसिल की फैक्ट्री लगा लो तो वो नहीं लगा सकता, उसको नॉलेज चाहिए रहेगा, उसको एक नॉलेज भी चाहिए रहेगा। तो नॉलेज कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात है। नॉलेज जो रहेगा उसी नॉलेज को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल। द नॉलेज रिक्वायर्ड, knowledge needed for production, knowledge needed for production, that is human capital। रिसोर्सेज में अदर रिसोर्सेज होंगे जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक चाहिए होगा, कैरिंग व्हीकल्स चाहिए होंगे, सारी चीजें जो चाहिए होंगी उनकी बात हम कर सकते हैं। और लेबर्स जो होते हैं जो ये काम करेंगे, जो मशीनों को चलाएंगे, ग्रेफाइट को इधर से उधर करेंगे, वो रॉड्स को डालेंगे लकड़ियों के बीच में, फिर उनका प्रोडक्शन होगा। लैंड से तो मतलब हो गया ये फैक्ट्री पर लगाने के लिए हमें जो लैंड चाहिए होगा उसे हम कहेंगे। तो इस तरह की ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब हम बात करेंगे पालमपुर के बारे में। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जो कि अपने आसपास के बड़े शहरों और छोटे शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। इसके आसपास का एक बड़ा शहर है रायगंज, और एक बलरामपुर है जो कि कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जिनके पास पुरानी बुक होगी उनके पास ये पूरा एडिशन मिलेगा। मेरे नए किताब के एडिशन में पेज नंबर 7 से डायरेक्टली दिया हुआ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो, बट वी विल टेक दिस चैप्टर हेड फ्रॉम हियर ऑन। तो ये पालमपुर एक गांव है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, बड़ी जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं। तो बड़ी जाति के लोग जो हैं गांव में, उनके घर पक्के के बने हुए हैं, सीमेंट, ब्रिक्स और कंक्रीट के बने हुए मकान हैं। जो एससीज हैं या दलित जाति कह सकते हैं आप, इनके मकान छोटे बने हुए हैं, फूस के, घास के और मिट्टी के बने हुए घर हैं। तो हम इस चैप्टर में ये देखते हैं, गो टू द पेज नंबर 7, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखिए किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ा कि इसमें लेबर की जरूरत होती है, लेबर कौन देगा।
तो मजदूरी का काम वही करेगा जिसके पास संसाधनों का अभाव रहेगा, जो गरीब रहेगा, जिसकी आवश्यकता उस तरह की है, वही लेबर का काम करेगा। तो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि इसमें लैंड चाहिए होगा, लैंड के बाद हमें लेबर चाहिए होगा। तो लैंड तो हमने बता दिया क्या क्यों चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होगा। तो लेबर, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। Small farmers along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for the farming themselves. Medium of the large farmers hire farm laborers to work in the fields. जो छोटे किसान होते हैं वो अपने ही खेत में अपने बीवी बच्चों और भाई बहन सब मिलकर के अपनी फैमिली के मेंबर्स से उस पर खेती करते हैं, उससे फसल उगाते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में क्रॉपिंग और ग्रोइंग करनी है, फार्मिंग करनी है, उनको लेबर्स चाहिए होते हैं, वो हायर करते हैं, यानी किराए पर मजदूर ले आते हैं, काम करवाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब प्रोडक्शन में बहुत सारी तरह की चीजें प्रोडक्शन में आती हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन है जिसमें हम फैक्ट्री तो नहीं लगाते, फिर भी उसमें भी लैंड चाहिए होता है, लैंड पे ही क्रॉप्स उगती हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा लेबर का रिक्वायरमेंट। दूसरा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लॉन्ग स्टोरीज डील करने का कोई मतलब नहीं बनता है ऑनलाइन क्लासेस में। सो आई एम टेकिंग यू टू द पॉइंट टू पॉइंट, I am teaching you the point wise. Okay, so the labor, you understood what kind of labor is required in the different forms of the production and the activity for the productions. तो पहला तो हमने ये समझ गया कि किस तरह से फार्मिंग होती है, छोटे किसान किस तरह से करते हैं, बड़े किसान किस तरह से करते हैं। Wages vary widely from region to region, from crop to crop, for one farm activity to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of the employment. कई बार क्या होता है कि मजदूरों का काम ऐसा होता है जिसमें बुआई होती है, जब फसल को बोना होता है उसकी मजदूरी का चार्ज अलग मिलता है, कटाई के समय का अलग मिलता है, और एक इलाके में मजदूरों का सैलरी एक तरह का है, दूसरी तरफ पे दूसरे इलाके में दूसरी तरफ का है। जिस बात कर रहे हैं हम पास में, हमारे आसपास के बंगाल वाले इलाकों में देखेंगे लेबर का कॉस्ट बिहार की तुलना में थोड़ा सस्ता है। यहाँ पे 350 में एक लेबर मिलता है, वहां पे आपको 300 रुपए में मिल जाएगा, 250 रुपए में मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मौसम के हिसाब से कौन सी फसल के लिए कितना, अब जैसे कि जितना धान बोने के लिए जितना मजदूरी मिलेगा, शायद मक्का को काटना और हार्वेस्ट करने के लिए उतने ही में काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हार्डवर्क ज्यादा है, तो पेमेंट भी ज्यादा मिलना चाहिए होगा, ऐसा है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, पूंजी, जो खेती करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी से मतलब उसमें बीज लाना, बीज को बोना, खाद डालना, मनोज डालना, एंटीसाइड पेस्टिसाइड्स डालना, इंसेक्टिसाइड्स डालना, ये सारी चीजें जो डाली जाती है उनके लिए जो पूंजी लगता है उसे हम द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग कहेंगे। Most small farmers have to borrow money to arrange for their capital. They borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for the cultivation. The rate of interest in such loans is very high. They are put to the great distress to repay the loan. क्या होता है, गरीब किसान जो है गांव में खेती करने के लिए, जब खेती का सीजन आता है, जब खेती करने का उनका वक्त आता है, मौसम आता है, तो उन्हें पैसे की कमी होती है, तो पैसे वो लेते हैं अपने गांव के किसी बड़े साहूकार से, या किसी बड़े ब्याज पर चलाने वाले जो साहूकार होते हैं, या फिर मनी लेंडर जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोगों से उन्हें सूद पर पैसे लेने पड़ते हैं। और ब्याज पर जब पैसे लेते हैं तो ऐसे पैसों के, ऐसे लोन्स के ब्याज के रेट जो है ना बहुत हाई होते हैं, 5% to 10% के बीच में ये लोग चार्ज करते हैं, और कई बार उन्हें नुकसान हो जाता है, फसल मार खा जाती है बाढ़ की वजह से, सुखाड़ की वजह से, या किसी अन्य नेचुरल डिजास्टर की वजह से। तो ऐसे में किसान पर अतिरिक्त दबाव बन जाता है, और कई बार आपने सुना होगा किसान हमारे देश में बहुत सारे लोन के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। In contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have their own savings from the farming. They are thus able to arrange for the capital needed. क्या होता है कि छोटे किसानों की तुलना में जो मझले और बड़े किसान हैं, इनके पास अपने फार्मिंग से बचाई गई कुछ रकम होती है, जिससे वो अपने कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें किसी से उधार लेने की या बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो how do these farmers have their own savings? You should find out the answer in the next section. क्या होता है, कुछ बड़े किसान हैं, सपोज दैट कि मान लीजिए कि एक किसान है जिसके पास 1 बीघे की खेती है,
वो 1 ही बीघा खेत लगाता है। 1 बीघा खेत लगाने में उसे खर्च आया कितना रुपया, उसको वहां पे सारा कुछ करना पड़ेगा, सारी कुछ व्यवस्थाएं करने के बावजूद वो 1 बीघा का लगाता है, उसमें कुल मिला के 4,500 रुपए का लागत आता है। फसल उगाने के बाद बेच करके उसको उसमें मिलता है सिर्फ 6,000 रुपए। तो 4,500 जो उसने इंटरेस्ट पे लिया था, तो 6,000 में तो भरते भरते उसका इंटरेस्ट पूरा ही पैसा चला जाता, तो सेविंग नहीं हो पाई पहली बात। जो बड़े किसान है जिन्हें इंटरेस्ट पे पैसा नहीं लेना पड़ा, तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका जब बड़े पीस ऑफ लैंड पे खेती करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ उसमें कॉस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कुछ सस्ता पड़ता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, सपोज दैट कि अगर कोई किसान बाजार में जाता है, बाजार से फसल के बीज लाने के लिए, तो उसे जाने आने का जो किराया 50 रुपए, अगर जाके 10 किलो बीज लाएगा तो भी 50 रुपए खर्च होगा, और वो 100 किलो बीज लाएगा तो भी 50 रुपए खर्च होगा। तो इस तरह से उसका जो कॉस्टिंग है, वो 10 किलो अगर बीज लेके आता और 50 रुपए खर्च हुआ तो 5 रुपए कॉस्टिंग पड़ा, और 100 किलो उतना ही में लाया तो उसको 10 पैसा कॉस्टिंग पड़ गया। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि वो खर्च जो है इस तरह से कुछ सेविंग्स हो जाती है। जब बड़ी मात्रा में कोई काम करते हैं हम, तो देखिएगा कि आप सस्ता पड़ता है। सेल ऑफ द सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, खेत में जब जैसे कि किसान के परिवार में 4 लोग हैं और उसे उत्पादन के बाद जो है 2 कुंटल अनाज की ही जरूरत है साल भर में, और उसका उत्पादन हो गया 10 कुंटल, तो क्या करेगा, जो सरप्लस है, यानी कि 10 कुंटल में से 2 कुंटल छोड़ के जो 8 क्विंटल बचता है वो सरप्लस प्रोडक्शन कहलाएगा। ऐसे सरप्लस प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, बाजार में जाकर बेच देगा। तो उसे जो बेचे जाने वाला प्रोडक्शन है या अनाज है, उसे ही हम सरप्लस प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये सरप्लस भी हम समझ गए। पॉइंट नंबर 7। अब हम देखते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में तो ये सारा कुछ है ही, इसमें एक स्टोरी भी दिया हुआ है। तो क्या होता है, लेट्स सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। द व्हीट is harvested and production is complete. Now what do the farmers do with the wheat? They retain part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like the Savita and Govind son have little surplus wheat because their total production is small, and from this substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and the large farmers who supply the wheat to the market. क्या होता है, किसी किसान के पास छोटी सी खेती है, उसके पास 2 कुंटल की अनाज की जरूरत है, 2.5 कुंटल हुआ, 50 किलो सरप्लस है, तो 50 किलो बेचने के लिए मंडी तक या बाजार तक नहीं जाएगा, बल्कि अपने गांव के ही छोटे मोटे दुकानदार या साहूकारों को बेच देगा। और ये जो गांव वाले होते हैं, गांव के साहूकार या उस तरह के बनिया भाई होते हैं, ये थोड़ा सस्ता माल खरीदते हैं। जहां बाजार में भाव 20 रुपए चल रहा है, ये 17 रुपए 16 रुपए खरीदने का प्रयास करते हैं, ताकि इसे बहुत सारे किसानों से, छोटे छोटे किसानों से खरीद कर उसे बाजार में पहुंचाएंगे, तो 20 रुपए का वो 4-5 रुपए का उसमें मुनाफा कमा पाए। इस तरह का ये एक छोटा सा अलग बिजनेस करते हैं। जो बड़ा किसान है, जिसने बहुत सारा गाड़ी माल पैदा किया, उसकी पैदावार ज्यादा हुई और वो ले जाके उस फसल को डायरेक्ट मंडी में बेचेगा, तो उसको 20 रुपए 50 पैसे 21 रुपए तक किलो का भाव मिल जाएगा, जिसमें कि उसका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता है। इस तरह से भी बड़े किसान अपना सेविंग बढ़ा पाते हैं और छोटे किसान हमेशा कर्ज तले दबे रहते हैं। तो आगे हम लोग इस चैप्टर को लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक रखते हैं और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसी का दूसरा हिस्सा। इसमें मैं बात करूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ बच्चे जो हैं कुछ कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इसको बना के आप डाल देंगे हमारे ग्रुप में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर लिखिए। वीडियो देखने के बाद क्या आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल आंसर डेफिनेटली दोस, एंड अलोंग विद दैट डोंट स्किप इट, because it takes a lot of hard work from my side, from all the teachers side. They are working very hard to teach you in this opposite kind of situation. So please pay attention towards your studies, take it seriously and focus on your studies. Thank you. Have a nice day.